السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. محترم حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. تو بات جہاں تک ہماری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 1857 تک، یعنی 1857 سے پہلے تک مسلمانوں نے کیا رول ادا کیا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی آپ سے. آج ہم 1857 سے بات شروع کرتے ہیں. یہ بات آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے میں نے کہ 1803 میں یہ بات جب انہوں نے دلی پر اپنا پریشر بنایا تو مغل بادشاہ کے سامنے یہ بات لکھ دی گئی کہ مخلوق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے اور حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا. یہ 1803 میں ان کا معاہدہ ہو گیا. تو نام کا بادشاہ لال قلعے میں بیٹھتا تھا، لیکن چلتی تھی کس کی؟ چلتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. پھر اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ جو سرحد میں مرکز قائم کیا گیا اور بالا کوٹ کا جو معاملہ پیش آیا اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو جب اس میں شہید ہو گئے تو یہ 1831 کی بات ہے. اور اسی سے ملتی جلتی پٹنہ کا بھی جو ہے وہ مرکز، اس پر بھی 1846 تک معاملہ ان کا بھی خراب رہا. بہرحال 1857 سے پہلے، کیونکہ اب جب حکم چلنے لگا، کیونکہ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے، جب حکم چلنے لگا ایسٹ انڈیا کمپنی کا تو انہوں نے پورے ملک پر اپنا جو ہے وہ سب کچھ جال بچھانا شروع کیا. جال بچھاتے بچھاتے 1851 سے لے کر کے انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی عیسائیوں نے. تو مسلمان تو ان سے کم متاثر ہوئے، بہت کم مسلمان ایسے تھے جو کرسچن ہوئے. اور اس کی وجہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے مذہب کی پالیسی سے متاثر ہو گئے، بلکہ انہوں نے اکنامیکل پرابلم مسلمانوں کی کچھ کی سالو کیا، حل کیا مسئلے کو. پیسے سے انہوں نے کیا کر لیا، ان کو خرید لیا. اور بقیہ جو غیر مسلمین پر انہوں نے محنت کی تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غیر مسلمین کی عیسائی ہو گئی. یا آپ جو کیرلا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچن کی ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ وہی ہے. اس کی دو بنیادی وجہ ہے کیرلا میں کرسچینٹی کی زیادہ ہونے کی. ایک تو روایت یہ ہے، ان لوگوں کی روایت ہے، ہم کو اس کی تصدیق نہیں ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کیرلا اسی زمانے میں آئے. ان کا نام غالباً تھامس تھا. وہ آئے اور اس کے بعد سے وہاں پر کرسچینٹی پھیلی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان انگریزوں نے، کیونکہ کیرلا میں ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ ہریجن کا تھا، جس کو بھیڑ کہتے تھے اس علاقے میں. تو ہریجنوں کو ان لوگوں نے، چونکہ پورے ہندوستان نے ہمیشہ بائیکاٹ رکھا اور ہمیشہ ان کو نیچے رکھا، لہٰذا انہوں نے ان کو پیار دیا، محبت دیا، اسکول دیا اور دوا دیا. یعنی ہاسپٹل کھولے، اسکول کھولے اور پیار محبت کی بات کی، لہذا ایک بڑا طبقہ کیا ہو گیا، کرسچینٹی قبول کر لیا. یہ ہمارے جو رہنما رہے مغل پیریڈ، بابر سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے نیچے ایک قبر بنائی. جتنی بھی عمارتیں آپ کی آج نظر آ رہی ہیں، وہ گول گنبد ہو، وہ آگرہ کا تاج محل ہو، سب کے نیچے ایک قبر ہے اور بقیہ کچھ نہیں. یہ اس میں بزی رہے، انہوں نے اپنا کام دکھایا. بہرحال یہ جو بنیادی طور پر انہوں نے دھرم کی بات شروع کی نا، تو یہ اب اندر اگر دیکھا جائے تو چاہے مسلمان اس میں انوالو ہوئے یا غیر مسلم، اصل وجہ مذہب ہے. جو بھی فریڈم فائٹر بنا یا فریڈم کے لیے لڑا، نام فریڈم کا بھلے دیا لیکن علت مذہب رہی، اس کو نوٹ کر لیں، یہ بڑی بات ہے. مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. تو ایک تو غیر مسلموں کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ ایک بڑی تعداد ہماری کیا ہو رہی ہے، کرسچینٹی کو قبول کر رہی ہے. مسلمانوں نے بھی اس کو محسوس کیا، لیکن مسلمان سے وہ ٹیبل ٹاک جب کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے، تو پہلے تو بہت سے مناظرے میں، کیونکہ ہمارے علماء نے کبھی اس لحاظ سے مسیحیت کو پڑھا ہی نہیں تھا ایک بڑی تعداد میں کہ وہ ڈبیٹ کر سکے. وہ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ، کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ،
कि जिन्होंने जम करके मुकाबला किया और कलकत्ता से चला हुआ डिबेटर को उन्होंने शिकस्त दी और उसके बाद मामला क्या हो गया, थोड़ा से थमा। तो इनके लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, तो हमारे लोग भी मुतासिर हुए, लेकिन कम मुतासिर हुए, लेकिन इनके लोग ज्यादा मुतासिर हुए। लिहाजा अंदर अंदर 1951 से लावा पकने लगा। दूसरी वजह क्या हुई, इसकी ये बात नहीं मालूम हो पा रही है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। 3 काम उन्होंने ऐसे किए जो मुसलमान और अंग्रेज में नेचुरली तौर पर नफरत। मिसाल के तौर पर जो आटा सप्लाई किया जा रहा था, जो कंट्रोल से आटा पब्लिक को दिया जाता था, उसमें सुअर की हड्डी का पाउडर और गाय की हड्डी का पाउडर मिक्स करके आटा सप्लाई किया जा रहा था। ये बात लीक कर गई। अब जब बात लीक करी तो दोनों के लिए ये क्या, उधर गाय का मामला, इधर सुअर का मामला, याद है, ये अपने आप बिखर गए। इसको वो पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि कोई ऐसे लैब नहीं थे इतने एडवांस किस्म के कि आटा को चेक करके बता दिया जाए कि इसमें गाय या सुअर की हड्डी है नहीं। लेकिन एक चीज उनकी पकड़ गई, वो क्या थी कि बहुत से कुओं में उन्होंने सुअर और गाय के गोश्त डालना शुरू किया। वो जो कुएं में डाला उन्होंने, जब कुएं की बात लीक की तो उस वक्त क्या हुआ कि उसको जब निकाला गया तो बहुत से कुएं में गोश्त निकला, सुअर का भी निकला और गाय का भी निकला। और तीसरा काम उन्होंने ये किया कि जो आर्मी, यानी आर्मी से मुराद वो फौज जो अंग्रेजों के अंडर में काम करती थी, थे इंडियन, बात समझे, इंडियन थे और लेकिन उनकी फौज में काम करते थे। उनको जो कारतूस दी उन्होंने ना, उसके ऊपर जो कवर लगाया, वो कवर ऐसा लगाया कि दांत से खींच करके निकालना है, फिर बंदूक में लोड करना है। उसमें जो उन्होंने ऑयल लगाया उसके बारे में ये मशहूर हुआ कि गाय और सुअर की चर्बी है। ये 3 काम, वो कुएं वाला, पाउडर वाला और ये चर्बी, ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। हालांकि इसमें कोई उनका जाती तौर पर फायदा नहीं था। ये जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं मैं खुद इस जवाब से मुतमईन नहीं, लेकिन आपको ये बता दूं, शायद कि जब इंसान अपने मजहब का प्रचार करता है तो उसको जब जुनूनी कैफियत होती है तो वो उस चीज को भी अप्लाई करता है जो दूसरे मजहब वालों को तकलीफ दे। ये शायद एक वजह हो कि उनके अंदर ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को तकलीफ देने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी अख्तियार की। अब अंदर अंदर 1857 का जो साल था, उसमें जनवरी या फरवरी के महीने में जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े आर्मी मरकज थे, उन्होंने ये तय कर दिया कि 31 मई 1857 को एक साथ पूरे जितने भी इनके जो है वो मिलिट्री के मरकज हैं, वहां पर हम लोग बगावत करेंगे फौज की शक्ल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। हैं वो, अगर आर्मी देखा जाए तो अंग्रेज के आर्मी हैं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की एक डेट ठान ली। तो इसमें 3-4 महीना लगा फिक्स करने में, जिन लोगों ने सफर किया होगा, तो वो 31 मई की तारीख मुतय्यन की गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 31 मई से पहले, सबसे पहले जो मामला खराब हुआ, वो खराब हुआ मामला कलकत्ता के इलाके में। ये दमदम और बहराम, इन इलाकों में ये बात जब मालूम हुआ कि ये पाउडर मिला रहे हैं और क्या कहते हैं कारतूस में चर्बी लगा रहे हैं, तो मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था जिसने अपनी पूरे आर्मी को तैयार करके और इनके खिलाफ जो है ना वो बगावत कर दी। जब वो बगावत की तो पहले बगावत ऐसे नहीं की, बगावत उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा ये जो बातें हम सुन रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पाउडर मिलाया जा रहा है और सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जा रही है, लिहाजा हमको हमारा दीन मुकद्दम है, लफ्ज़ दीन से एहतजाज किया। अच्छा, फौज का मामला तो ये होता है कि अगर आपने फौज के अगेंस्ट किया तो सजाए मौत ही है। तो अंग्रेजों ने इसको नोटिस लेने के बजाय उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इसको एहतजाज को उन्होंने नोटिस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने जो लोग भी इसमें मिले उन्होंने अरेस्ट किया। और मंगल सिंह को उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को उन्होंने क्या किया, और उनके एक साथी को फांसी दे दी।
फांसी देने का मकसद ये था कि पूरे आर्मी को इंडिया को मालूम हो जाना चाहिए कि आर्मी का रोल सख्त है, अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो नतीजा ये बरामद होगा। ये इंफॉर्मेशन जो है वो आकर के पहुंची मेरठ में ये इत्तला मिली कि मंगल पांडे को इस बुनियाद पर कि हमारे दीन के साथ मजाक किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों ने वहां किया था, तो उसमें से तकरीबन इन दो को फांसी दे दी गई और 7 जो टीम थी आर्मी की उन सबको सर्विस से क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, उनकी वर्दी ले ली गई और उनको जो है ना कोई भी उनकी ग्रेजुएटी जो भी सिस्टम था सबसे महरूम करके उनको जॉब से अलग कर दिया गया। ये सारी इत्तला यहाँ पर पहुंची जब कल यहाँ क्या कहते हैं आपके मेरठ, जब मेरठ में पहुंची तो मेरठ में क्योंकि मेरठ एक बड़ा इलाका था जहां पे जो है फौजें रहती थी, तो मेरठ के साथ साथ पहले शाहजहांपुर ये इत्तला पहुंची, यूपी का इलाका है शाहजहांपुर, फिर मुरादाबाद, फिर मेरठ। शाहजहांपुर में मौलाना सरफराज अली साहब बहुत इनकलाबी आदमी थे और इन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर एक जलसा किया और जलसा करने के बाद इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला पेश है और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है और ये हालात पूरे हिंदुस्तान पर होने वाले हैं। लिहाजा जब इन्होंने तकरीर की अंग्रेजों के खिलाफ तो इतना जज्बाती अंदाज में तकरीर की कि बड़ी टीम इनके साथ तैयार हो गई कि क्या करना है ये बोलिए। उसी तकरीर में ही एक बड़ी टीम जो है तैयार हो गई। लिहाजा इन्होंने क्या किया, बगावत का ऐलान कर दिया। ये इत्तला दोनों आकर पहुंची मेरठ। जब मेरठ इत्तला पहुंची तो मेरठ में क्या हुआ, ये 6 मई की बात है 1857 की, तो उनको ये बात मालूम थी कि नई कारतूस आई है और ये खुलवाई जाएगी। तो 90 आदमियों की पलटन यानी फौज को उसमें से सिलेक्टेड लोगों को उन्होंने परेड कराई और परेड कराने के बाद वो कारतूस उनको दी कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तेमाल ऐसे होती है। अब इनको जो बात थी कि इसमें चर्बी लगाई गई है, ये जानबूझकर मुंह से खोलनी है, उनको कंफर्म हो गया कि जानबूझकर ये हमारे दीन को हमको बददीन करने के लिए किया जा रहा है। वो 90 आदमियों में से 85 लोगों ने कारतूस खोलने से इनकार कर दिया। अंग्रेज जो उनका कर्नल था या जो भी था आर्मी का चीफ था, उसके सामने उन्होंने कहा हम लोग ये नहीं करेंगे। 5 आदमी उसमें ऐसे थे जिन्होंने खोल दिया, बल्कि 85 में, उस 85 में 49 मुसलमान थे और बकिया गैर मुस्लिम थे जिसमें क्रिश्चियन भी थे और हिंदू भी थे। बहरहाल जब बात आई तो उन्होंने शाम के वक्त में इनका सबका माशाअल्लाह किया और सारे लोगों को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी फौरन। ये जब कैद सजा सुनाई गई तो उन्होंने कैद से पहले सारे लोगों को बेड़ियां बांध करके, हथकड़ियां बांध करके मेरठ शहर में बेइज्जत किया गया। उनको फटी हुई वर्दियां पहना करके उनको बताया गया कि ये बगावत की सजा ये होती है और ले जा करके उन्होंने क्या कर दिया, जेल में, मेरठ की जेल में बंद कर दिया। तो 6 मई को यह वाकया हुआ, 9 मई को डिसीजन हो गया। डिसीजन होने के बाद 10 मई को जो बकिया फौज मेरठ में थी उन्होंने बगावत कर दी। बगावत कैसी की कि हथियार इनके पास पहले से मौजूद था, जितने भी वहां अंग्रेज ऑफिसर थे सबको रात में मार डाला। मेरठ में किसी अंग्रेज को छोड़ा ही नहीं और जा करके जेल का दरवाजा तोड़ दिया, उसमें आग लगा दी और वो उनके जो 85 आदमी उन्होंने अरेस्ट किए तो उनको वहां से निकाल लाए और 800 लोग पहले से सियासी कैदी मौजूद थे उनको भी क्या कर दिया, उन्होंने आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद इन्होंने यहां से ये सोचा कि अब हम दिल्ली पर जो है जाकर के बहादुर शाह जफर से अपने मामले को रखेंगे और हम ये तय कर लिए कि हम इनकी ओबीडियंसी, इनकी इताअत नहीं करेंगे अंग्रेजों की। यहां से ये चले, कहां से, मेरठ से। मेरठ से दिल्ली की दूरी जो है वो बहुत लिमिटेड दूरी है। रास्ते में जो भी अंग्रेजों की चौकियां थी, हिफाजत थी, पुलिस स्टेशन थे, ये इतनी बड़ी तादाद थी कि कोई इनके सामने टिक नहीं सका। अंग्रेज कोई भी नजर आया उन्होंने छोड़ा नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जितनी चौकियां थी सब फूंक डाली और जाकर के बहादुर शाह जफर तक बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। अब आपको हम लोग कहते हैं कि आप फिर से बागडोर संभालिए हमारी और हमारी लीडरी कीजिए। ये बात यहां तक आप रखें कि दिल्ली पहुंच गए
इसके बाद मामला क्या हुआ कि ये बात अब दूसरी जगह भी पहुंची, सहारनपुर में मामला पहुंचा। तो सहारनपुर से लगा हुआ जो इलाका है वो केराना है, ये गंगोह है और थाना भवन है। तो जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पर बगावत हो चुकी है, तो जहां जहां हमारे मुस्लिम उलमा रहनुमा थे, उन्होंने सोचा कि अब ये अच्छा मौका है और अपनी अपनी जगह पर इतनी बगावतें फैला दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही नहीं सके। लिहाजा सबसे इसके बाद सहारनपुर में ये वो दिल्ली पहुंच गए और इसी दरमियान में सहारनपुर में बगावत का ऐलान हो गया। ये बगावत हुई थाना भवन में, थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो गांव है थाना भवन में। तो उस वक्त इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े उलमा को बुलाया। तो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को अमीर बना दिया लोगों ने, और उसके बाद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह को फौज का सिपह सालार बना दिया, और रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को क्योंकि पूरे इलाके पर इन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद अंग्रेजों के जो पुलिस चौकियां ये सबको भगा दिया और थाना भवन के इलाके में उन्होंने गोया कि अपनी हुकूमत कायम कर ली। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को काजी बना दिया चीफ जस्टिस, और उसके बाद हाफिज जामिन और मौलाना मुनीर अहमद साहब को मैसरा और मैमना का इंचार्ज बना दिया। तो गोया 3 आदमी फौज में इंचार्ज हो गए, मौलाना जामिन साहब और मौलाना मुनीर साहब और क्या कहते हैं कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह एज ए चीफ ऑफ आर्मी। इन लोगों ने यहाँ जब ऐलान कर दिया तो एकदम ऐसा लगा कि थाना भवन के पूरे इलाके में अब यकीनी बात थी कि हुकूमत जो चलेगी किस कानून के तहत चलेगी। तो किया था मुसलमानों ने, लिहाजा उन्होंने इस्लामी कानून के तहत ऐलान कर दिया कि इस्लामी कानून के तहत जिंदगी चलेगी। जब ये दिल्ली पहुंचे ये लोग और अंग्रेजों ने इनका मुकाबला किया, पहले तो 2.5 महीने तक लगातार वहां पर जो है वो, अब बहादुर शाह जफर ने कमांड संभाल लिया। पहले बहादुर शाह जफर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मामला जो कुछ भी आप लोगों ने किया है, मैं इनके वाइसराय को बुला करके आपसे उनकी बात कराता हूं और मैं सिर्फ मीडिएटर की हैसियत से काम कर सकता हूं। तुम्हें मालूम है कि 1803 में ही हमारी हुकूमत क्या हो चुकी है, जा चुकी है। मैं तो सिर्फ क्या हूं, रबर स्टाम्प हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं इतना कर सकता हूं कि अंग्रेजों के और तुम्हारे दरमियान में बहसीयत सालिस के गुफ्तगू करा दूं कि मामले को दफा दफा किया जाए। तो उसको बुलाया गया कमिश्नर को। कमिश्नर आया और उसने लाल किले में तकरीरें की। लाल किले में जब तकरीर की उसने ना, तो उसने पहले एहसानात दिखाए कि देखिए हमने हिंदुस्तान में क्या क्या तरक्की के काम किए हैं, कितने ब्रिज बनाए हैं, रोड बनाए हैं। 1601 के बाद से उन्होंने 1857 तक की अपनी सारी कारकर्दगी दिखलाई। तो ये जो मेरठ के फौजी गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इतना किया है तो हमने भी तो पूरा मुल्क से बगावत करके अपने लोगों को मार करके तुम्हारे सामने नाश्ते के तौर पर पेश कर दिया। कलकत्ता से लेकर के और सरहद तक हम ही लोगों ने, हम ही इंडियन ने तुम्हारे सामने इस मुल्क को पेश किया, आप उसको भी उसके साथ में गिना में। बहरहाल मामला ये होने के बजाय मीडिएटर, इसी दरमियान में एक फौजी ने उठा करके उस कमिश्नर के ऊपर हमला कर दिया, उसी दरमियान में, जिसको बहादुर शाह जफर ने बहसीयत सालिस बुलाया था। और हमला ऐसा किया कि वो उसी हमले में क्या हो गया, थोड़े दिन के बाद, 2-1 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। अब अंग्रेज जो थे उन लोगों ने सोचा कि बहादुर शाह जफर को जब तक सरेंडर नहीं किया जाएगा तब तक मामला नहीं बनेगा। अब बहादुर शाह जफर और ये मेरठ से आई हुई फौजें, ये बात फैल गई कि दिल्ली पर अब जो है वो फिर इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया। तो उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, तो बहुत से लोग वॉलंटरी तौर पर दिल्ली आने लगे और उन्होंने कहा हम लोग भी आपके साथ हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं। तो ये जो इन लोगों ने जो थाना भवन में मामला हुआ, तो सहारनपुर से जो है, सहारनपुर एक बहुत बड़ा अड्डा था अंग्रेजों का। तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी अंग्रेजों की, उन्होंने सहारनपुर से मदद मांगी। जब सहारनपुर से मदद मांगी तो उस वक्त आपको मालूम है कि असलहे पर पाबंदी नहीं थी हिंदुस्तान में, तो बहुत से जो है वो असलहे लोग रखते थे। यहाँ पे सहारनपुर में काजी इनायतुल्लाह साहब थे, जो बड़े मालदार आदमी थे, तो ये सहारनपुर जा रहे थे हाथी खरीदने। तो इनकी मुखबिरी की गई कि यह हाथी इसलिए खरीद, उस वक्त हाथी जंग के लिए बड़ा हथियार माना जाता था। तो ये रूमर फैलाई गई कि काजी इनायत साहब जो हाथी खरीद रहे हैं ये अंग्रेजों की मुखालफत के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरठ में बगावत हो चुकी है।
ये रास्ते में थे, अभी सहारनपुर पहुंचे भी नहीं थे, कहाँ थे, थाना भवन थे, कि इनको इन्होंने पकड़ करके फांसी दे दी। सहारनपुर अदालत में पेश किया गया और दो दिन का मुकदमा गालबन चलाया और चला करके इनको फांसी की सजा दे दी और 3-4 दिन के अंदर इनको फांसी पर लटका दिया। जब फांसी पर इनको लटका दिया तो उनका यह था कि प्रेशराइज कर दिया जाए और अपने आप मामला बन जाए। ये जब इन्होंने फांसी दी तो मामला और भड़क उठा और मुसलमान जो थे ना वो बहुत ज्यादा इनके खिलाफ हो गए। इस बुनियाद पर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुजाहिदीन ने बैत की और बैत करने के बाद थाना भवन के इलाके में गोया की हुकूमत कायम कर दी गई। अब जब दिल्ली की मदद के लिए सहारनपुर से मदद मांगी गई तो यहाँ से तोपखाना रवाना किया गया। अच्छा, तोपखाना एक ऐसा उस वक्त का वेतन था कि इन लोगों के पास पर्सनली तौर पर किसी के पास तोप नहीं थी, बंदूक थी जो भी थी, लेकिन तोप नहीं थी, तलवार और बंदूक दोनों थी। तो रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को बात मालूम हो गई कि शामली के रास्ते से, ये रास्ता दिल्ली का 2 रास्ता है, एक शामली होते हुए जाता है और एक जो है वो देवबंद होते हुए जाता है। तो शामली के रास्ते से इत्तला मिली इन लोगों को कि तोपखाना यहाँ से जाएगा। तो रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने 40 मुजाहिदीन को तैयार किया रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के साथ में कि जब ये इस इलाके से गुजरे वो तोपखाने के साथ 40-50 फौजी होंगे, लिहाजा इनके ऊपर जब इस रास्ते से गुजरे तो वो एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट की गई कि इस बाग से ये गुजरेंगे और इस बाग में आप छुपे रहें, जब यहाँ से गुजरे तो इनके ऊपर गोली चला दीजिए। वो इत्तेफाक से उस रास्ते से गुजरे, वही रास्ता जिस रास्ते को इन्होंने किया था, क्योंकि वो तोप लेके जाना था तो उसमें कोई खेत से नहीं गुजर सकते थे। उस वक्त रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो अपने 40 मुजाहिदीन के साथ थे, इन्होंने बंदूक से क्या कर दिया, फायरिंग कर दिया और उनके जितने लोग उसके साथ थे सब मारे गए और तोप को इन्होंने कब्जा करके ला करके मस्जिद के सामने खड़ा कर दिया। अब जब मस्जिद के सामने ला करके खड़ा कर दिया तो अब ये बड़ा हो गया कि साहब इन लोगों ने तो बड़ी जीत कर ली। इसी दरमियान में ये आपको बता रहा हूं कि सिर्फ बेरठ का मामला नहीं हुआ, इसी दरमियान में जो है वो केराना में मौलाना, अभी आपका नाम लिया ना, मौलाना रहमतुल्लाह साहब केरवानी, मौलाना रहमतुल्लाह साहब केरवानी ने चौधरी अजीमुद्दीन साहब से मिल करके इन्होंने यहाँ पर अपने इलाके में क्या कर दिया, अपनी हुकूमत कायम कर दी। क्योंकि जब शामली का मामला पेश आ गया और थाना भवन में हुकूमत, ये सब करीब करीब के इलाके हैं, तो उनका हौसला बुलंद हो गया और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को वहां से जो उनकी अदालतें थी या उनकी तहसीलें थी या उनकी पुलिस स्टेशन थे, उन्होंने उनको भगा करके इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। तो केराना में भी गोया की कब्जा हो गया। ये बात इत्तला मिली अलीगढ़ वालों को। अलीगढ़ में थे काजी अब्दुल जलील साहब। काजी अब्दुल जलील साहब ने अलम बगावत किया और पूरे अलीगढ़ पे क्या किया, अपनी हुकूमत कायम कर दी और यहाँ के अंग्रेजों को क्या कर दिया, सुबकदोश कर दिया। यहाँ से निकलने के बाद अलीगढ़ के बाद रोहेलखंड और मुरादाबाद तक इत्तला गई कि राब मुस्लिम जो है वो उलमा, उन्होंने जिहाद बुलंद कर दिया है, जिहाद का नारा बुलंद कर दिया है और अपने अपने इलाके में इन लोगों की अपनी हुकूमत हो गई है। लिहाजा रोहेलखंड और मुरादाबाद में तकरीबन यही सूरत हाल पेश आ गई। उसके बाद बदायूं में मौलाना सैयद अहमद बदायूं रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही जबरदस्त उनके इनकलाबी आदमी थे, इन्होंने बदायूं पर क्या कर दिया, अपना कब्जा कर लिया। वहां से एक साहब थे जिनका नाम था मौलाना अहमदुल्लाह शाह साहब। ये मौलाना अहमदुल्लाह शाह साहब जो है, हाँ, मुरादाबाद में जब अंग्रेजों ने चढ़ाई की तो उसमें मौलाना किफायतुल्लाह साहब को इन्होंने पकड़ लिया और उनको फांसी दे दी। तो इधर मौलाना किफायतुल्लाह साहब को फांसी दे दी गई, उधर जो है वो चौधरी साहब को काजी साहब को फांसी दे दी गई। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ, लेकिन मुसलमान फिर भी जो है ना अपनी जगह पर जमे रहे। अहमदुल्लाह शाह साहब ये चेन्नई के थे रहने वाले, लेकिन इनका उलमा से बड़ा कॉन्टेक्ट था, लिहाजा बहुत पहले ये दिल्ली आ गए थे और शाह साहब के खानदान से जुड़े हुए थे। तो शाह साहब ने इसके खानदान वालों ने इनको आगरा भेजा, मौलाना को, अहमदुल्लाह शाह साहब को। ये आगरा की सूरत हाल लिखी हुई है, हैरत होती है। कहते हैं कि जामे मस्जिद में जुमा के दिन नमाज पढ़ने वालों की तादाद 25 से ज्यादा नहीं थी, यानी पूरा आगरा करप्ट हो गया था, दीन नाम की कोई चीज नहीं थी। जब अहमदुल्लाह साहब को यहाँ भेजा गया तो इन्होंने पहले क्या किया, तबलीग दीन किया और तबलीग दीन करने के बाद, क्योंकि बहुत बुजुर्ग आदमी थे, थोड़े दिन में ये कैफियत हुई कि जामे मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं। इतना इन्होंने तेजी से काम किया माशाल्लाह। अंग्रेजों को दर्स कुरान जब इन्होंने शुरू किया, रवायत में आता है कि 10-10 हजार आदमी दर्स कुरान में बैठते थे
अंग्रेजों को मालूम है कि ये तो इनके फैन बढ़ते जा रहे हैं, तो बड़ा आगे चल करके ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लिहाजा इनको इन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की। ये बात इनको मालूम हो गई कि हमारे खिलाफ लग गया। ये वहां से किसी तरह छुप करके लखनऊ आ गए। इन्होंने सोचा कि लखनऊ एक बड़ा इलाका है और वहां चलकर काम किया जाए। लखनऊ आए तो उन्होंने लखनऊ में काम शुरू किया। सीआईडी तो इनके पीछे पहले से लगी हुई थी। अब जब लखनऊ में इनके फैन बढ़ने लगे तो अंग्रेजों ने शियों को मिला करके इनके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। तो मौलाना अहमदुल्लाह साहब को ये बात मालूम हो गई कि हमारे खिलाफ यहाँ भी मामला है, तो यहाँ से उठ करके ये फैजाबाद चले गए। फैजाबाद जब चले तो लखनऊ से अंग्रेजों ने इनका पीछा किया और फैजाबाद में जाकर के इनको अरेस्ट कर लिया अहमदुल्लाह साहब को। जब फैजाबाद में ये अरेस्ट हो गए और फैजाबाद की जेल में डाल दिया गया तो इनके एक शागिर्द थे मौलाना सिकंदर साहब। मौलाना सिकंदर साहब ने एक दिन तय करके मुसलमानों को बुला करके जेल पर हमला कर दिया। ये वही वक्त था जब सारी जगह पर हमले हो रहे थे। ये इन्होंने जेल पर हमला कर दिया और अहमद साहब को वहां से क्या कर दिया, जेल से छुड़ा लाए और बहुत से कैदियों को भी उन्होंने क्या किया, छुड़ा दिया। ये इतने मकामात पर मुस्तकिल जो है वो सिर्फ बेरठ, क्योंकि ज्यादातर बेरठ का नाम आता है, बल्कि इन लोगों के इलाकों का नाम बहुत कम आता है। तो ये तमाम इलाकों में बैक वक्त बगावत की गई, लेकिन इन सब की बगावत का नतीजा वही निकला जो दिल्ली की बगावत का निकला। वो क्या हुआ, अब आपको ले चलते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में वो मुस्लिम आर्मी तो पहुंची हुई थी और बहादुर शाह जफर ने मोर्चा संभाल लिया था। जब इनको तोप मिल गई तो 2.5 महीने तक तो मुसलमान किसी तरह उस किले से लड़ते रहे, लेकिन जब तोप पहुंच गई ना तो मुस्लिम जो आर्मी किले के अंदर थी ये सरेंडर हो गई, इसने हथियार डाल दिया। हथियार डालने के बाद बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया और बहादुर शाह जफर को आगरा ला करके ये हुमायूं के किले में ला करके कैद किया और वहां पर इनके दोनों बेटे जो शहजादे थे उनकी दोनों की गर्दन काट के नाश्ते के टाइम पर ट्रे में सजा करके दिया और बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह तो यकीनी बात है बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब दिल्ली पर इनका पूरा कब्जा हो गया और इन्होंने मुगल सल्तनत का झंडा उतार करके अंग्रेजों ने अपना झंडा लगा दिया। ये बात है सितंबर 1857 की। अब उसके बाद इन्होंने पकड़ धकड़ शुरू की कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद इनकी जो 2.5 महीने जंग हुई ना किले से रहते हुए, उसमें एक बड़ी तादाद इनकी क्या हो गई, खत्म हो गई। लिहाजा अब जब इन्होंने पकड़ धकड़ शुरू की तो इसमें जो इनकी रिपोर्ट थी कि सारा मामला बिगाड़ा है मुसलमानों ने। दिल्ली के हर चौराहे पर फांसी का फंदा लटका दिया गया है। आपको हैरत होगी कि चांदनी चौक में मालूम नहीं है कि कितने लोगों को फांसी दी गई है, और फांसी दे करके ऐसा नहीं कि बॉडी हवाले। अंग्रेजी एक ब्रिटिश राइटर है लेडी, वो लिखती है कि लाशों को टांग दिया जाता था और सूख करके अंग्रेजी के 8 बन जाते, बॉडी को ले जाने की इजाजत नहीं देते थे। और जो तरीका उन्होंने फांसी का अख्तियार किया था, दो इतने ऐसी अजियत के तरीके अख्तियार किए, लगता नहीं कि इंसान कोई है जो ऐसा काम कर सकता है। तोप के मुंह पे, और सब इसमें 99% मुसलमानों को फांसी दी गई, क्योंकि मुसलमान ही सारे में इन्वॉल्व थे और मुसलमानों के से ही इनको डर था। तो जो भी मुअज़्ज़ज़ मुसलमान दिल्ली में था, चाहे उसमें इन्वॉल्व था चाहे नहीं था, सिर्फ उसका नाम मुसलमान होना काफी था, तो ला करके तोप की मुंह पर रस्सी से आदमी को बांध देते थे और उसके बाद इधर से तोप चलाई जाती थी, सैकड़ों टुकड़े में वो आदमी बढ़ जाता था और 300-200 मीटर तक उसकी बॉडी के जो है इससे बिखेरे जाते थे, और ये सारा का सारा चौराहे पर किया जाता था। जो फांसी का तरीका उन्होंने, क्योंकि कोई जेल इतनी नहीं थी कि इतने लोगों को फांसी दी जा सके, लिहाजा दरख्तों पे उन्होंने क्या किया था, फंदा लटका दिया था और हाथी पर बैठा करके उस आदमी को ले जाते थे, और ले जाने के बाद फंदा उसके गले में डाल के टाइट कर देते थे, हाथी को आगे कर देते तो बंदा वहीं लटक जाता था। इस तरीके से अजियतनाक, और ये सिलसिला जो पकड़ धकड़ का चालू रहा, ये 1 साल तक चालू रहा।
इसमें अंदाजा नहीं है, हम नंबर आपको नहीं बता सकते कि कितने लोग मारे गए और कितने लोगों को फांसी दी गई। अंदाजा ये है कि मुसलमान उलमा भी इसमें बहुत कसरत से मारे गए और आवाम भी कसरत से मारी गई, लेकिन कम से कम ये एक साल में 30 से 40 हजार लोगों को फांसी दी गई और ये फांसी का सिलसिला मुस्तकिल जारी रहा। वो अहमद शाह साहब के बारे में एक बात बताना भूल गए कि अहमद शाह साहब जब वहां से जेल से निकाले गए तो ये आ करके इन्होंने शाहजहांपुर में काम शुरू किया। शाहजहांपुर में जब दिल्ली पर हो गया तो ये सब मरकज पर उन्होंने एक साथ धावा बोला। थाना भवन का मामला हलाक किया, इसी में दामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जामिन जो है वो शहीद हुए। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मजबूर होकर के उनको हिजरत करनी पड़ी। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 9 महीने तक जो है वो रूपोश रहे। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इसमें अरेस्ट हो गए और अरेस्ट होने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। उसके 2 साल के बाद 1859 में जब विक्टोरिया ने जो है माफी आम का ऐलान किया तो ये जो कैदी सारे के सारे आजादी के नाम पकड़े गए थे ये छूटे, तब रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह छूटे और एक बड़ी तादाद जो थी उलमा की जान बचा करके वो हिजरत करके मक्का चली गई। उसमें इमदादुल्लाह इसीलिए वो मुहाजिर मक्की कहलाते हैं। वो इसी सानहे के बाद उन्होंने क्या किया, हिजरत किया। तो वो अहमद शाह साहब के जो बारे में बताया, शाहजहांपुर आए, शाहजहांपुर में इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के किसी तरीके से ये निकल गए और निकल के जाकर के वहां के करीब में एक नवाब थे, उनसे उन्होंने पनाह मांगी। उसने क्या किया, वो था अंग्रेज का दोस्त, उसने इनको पनाह दे दिया और पनाह देने के बाद उसने कहा कि आप हमारे किले में आ जाइए। जब ये किले के करीब पहुंचे तो ऊपर से उनको गोली मार दी, अहमदुल्लाह साहब को ऊपर से जब गोली मार दी, गोली मारने के बाद उनके सर को कलम करके ले जाकर के पुलिस स्टेशन, अंग्रेज की पुलिस स्टेशन में जाकर के जमा किया। कहा ये वो बंदा है जो चेन्नई से निकला है और यहाँ तक पहुंचा है। और उन्होंने उस सर को कोतवाली के ऊपर मेजे पर टांग दिया और 1 हफ्ते तक सर टंगा रहा। और थाना भवन पे जब हमला किया इन लोगों ने 2 साल तक लिखा है कि थाना भवन एकदम उजाड़ हो गया और तोपों से उन्होंने घरों को बर्बाद कर दिया और जिन लोगों को उन्होंने लाश से लटकाया था 2 साल तक लाशें लटकी रही। और आपको हैरत होगी, लिखने वालों ने लिखा है, जो तजुर्बे से लिखा है कि किसी की बॉडी खराब नहीं हुई थी। जब विक्टोरिया ने माफी आम का ऐलान किया तब इन बॉडी को उतारने का मौका मिला लोगों को, और जब बॉडी उतारी गई तो किसी की बॉडी में कोई ना बदबू थी, कुछ भी नहीं थी। वो जो हदीस में आता है शहादत के लिए ना, वो लोगों की आंखों के सामने नजर आया। इस तरीके से दिल्ली के बाद का मामला यहाँ तक खराब हुआ कि अब जितने भी इस किस्म की चीजें थी, जो भी जहां पर जिन लोगों ने हुकूमतें कायम की थी, सब बर्बाद हो गई। उलमा जो है वो परेशान हो गए। इंशाअल्लाह जिंदगी तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अब उलमा ने इसके बाद फिर क्या प्लानिंग की और मामला कैसे चला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।